Let's start our today's chapter, that is chapter number 8, Force and Laws of Motion. To understand this chapter, there are few terminologies from the last chapter that must be understood to you. That are, what is motion, what are the states of motion, what is rest and motion, what is velocity, what is average velocity, what is uniform motion, non-uniform motion, acceleration, and etc. If you have understood that terminologies, then it's okay. Only then you will be able to understand this chapter. Okay. Now, in that chapter, we haven't discussed about anything about the cause of the motion. Now, cause means what is the reason behind the motion? Why they are moving here and there? What is the reason? Or what causes the motion? Whenever you take any example, let's take an example of a box which is on a table, or we can take example of ball. You can say yes. Let's take a ball on a table. Now, will ball move? रख दिया आपने टेबल पे. अब फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल रखा है एक टेबल पे, ठीक है. नाउ विल दैट बॉल मूव बाय इटसेल्फ? नो. राइट नाउ इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एज द टेबल इज हॉरिजॉन्टल. तो बॉल अपने आप तो मूव करेगा नहीं, आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, या फिर पुल करना पड़े, या फिर हिट करना पड़े, वॉट एवर इट इज. यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट, एंड दिस पुश और पुल इन साइंस इज कॉल्ड एज force. क्या कर सकता है force? Basically, what is the definition of force? It is nothing but the push or pull to an object. Now, force can change the velocity. If you want to change the velocity, you have to apply the force. Force can change the direction of an object. If you want to change the direction, then only you have to apply the force. Then also you have to apply the force. Force can change the shape, size, etc. of an object. These are the effects of force that you might have studied in the previous section. Let's start a new topic, that is balanced and unbalanced forces. To understand these terms, let's take an example first. Let's take an example of a box attached with two strings. There is a box attached with two strings. अब दोनों string को आप खींच रहे हो एक तरफ से और दूसरी तरफ से. अब क्या होगा? अगर दोनों तरफ से आप जो भी फोर्स से खींच रहे हो, दोनों फोर्स सेम है, तो क्या होगा? क्या वो बॉक्स अपनी जगह से मूव करेगा? विल दैट बॉक्स विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन? नो. रेस्ट पर ही रहेगा. सो इट विल बी नॉट इन मोशन. व्हाई? द रीजन इज इक्वल फोर्सेस. एज बोथ द फोर्सेस आर इक्वल बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, सो दे विल कैंसल आउट ईच अदर. दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ का फोर्स सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल फोर्सेस लीड टू नो मोशन. तो वो बॉक्स अपनी जगह पर रेस्ट पर ही रहेगा. बट टू गेट द बॉक्स इन मोशन, यू नो, वी विल नीड अनइक्वल फोर्सेस. एक तरफ से जो आप फोर्स लगा रहे हो ज्यादा है, सपोज इस तरफ का फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा? बॉक्स किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ मूव कर जाएगा. तो जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? अपनी नेट फोर्स की. अब यहाँ पे दो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं. वी विल टॉक हियर अबाउट नेट फोर्स. तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वट एवर द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स. सो अनइक्वल फोर्सेस लीड टू मोशन. तो ये जो इक्वल फोर्सेस कहा, इक्वल फोर्सेस था, तब नेट फोर्स क्या आ रहा था? जीरो. जब नेट फोर्स जीरो हो, देन इट इज कॉल्ड एज बैलेंस फोर्सेस. ऑब्वियसली देयर आर मोर देन टू और मोर देन वन फोर्स in the picture. Then if we talk about unbalanced forces, then unequal forces that lead to motion are example of unbalanced forces. Okay. Let's take another example of a person pushes a box. अब push करोगे तो क्या हिल जाएगा वो? अभी let's take the first case in which a person pushes a box with a smaller force. थोड़ा ही force दिया. Will the box move? No. It might be heavier than he has expected. अब उसने क्या किया? थोड़ा फोर्स बढ़ाया और फोर्स बढ़ाया, तो क्या होगा? It may move. Yes, in the second case it moves. So what do you understand by that? When the force was small, पहले केस में क्या किया? जब फोर्स लगाया था तब वो बॉक्स नहीं मूव किया था. क्यों? क्योंकि फोर्स लगा तो मोशन में तो आना चाहिए, हमने यही तो पढ़ा. बट force must be unequal.
अब नहीं मूव कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि आपने जो फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा. एंड व्हाट इज दैट फोर्स? यस, दैट फोर्स इन दिस केस इज फ्रिक्शनल फोर्स. पता है ना फ्रिक्शनल फोर्स? व्हेन टू सरफेसेस कम्स इन कांटेक्ट एंड एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. अब जब बॉक्स को आपको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे थे, तब बॉक्स का जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है वो का क्या जनरेट करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे ही आप फोर्स लगाओगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. जितना आपका फोर्स है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स है. कैंसल आउट ईच अदर, सो इक्वल फोर्सेस लीड टू नो मोशन. बॉक्स मूव नहीं करेगा. अब आपने थोड़ा और फोर्स लगाया, थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, फिर भी बॉक्स मोशन नहीं कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है. वाई? अब जैसे ही आप फोर्स बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन भी तो बढ़ रहा है. फ्रिक्शन बढ़ रहा है, आपका फोर्स बढ़ रहा है, जो भी वैल्यूज है फोर्स की दोनों सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, विल लीड टू नो मोशन. बट देयर कम्स अ स्टेज व्हेन यू इंक्रीज द फोर्स दैट मच दैट इट विल बी मोर देन द फ्रिक्शन. जितना भी फ्रिक्शन है उससे थोड़ा भी ज्यादा आपने लगा दिया, देन द बॉक्स विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. तो जब भी अनइक्वल फोर्स होंगे, आपका फोर्स बड़ा है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम है, then the box will start moving. Unequal forces lead to motion. Okay, let's take another example of pedaling while riding a bicycle. Okay, सबने साइकिल चलाइए और साइकिलिंग करते करते कभी कभी आप क्या करते हो? पेडल मारना छोड़ देते हो. And what will happen? साइकिल थोड़ी देर तक चलेगी, फिर और थोड़ी देर तक चलेगी, फिर रुक जाएगी. It will stop eventually. But if we talk about pedaling, then in that case आपने तो फोर्स लगाना छोड़ दिया, फिर भी क्यों चल रही थी? और चल रही थी वो तो ठीक है, चलो, रुक क्यों गई? Our main question is why it stops. What is the reason? What is the force behind that? The force is whenever you are applying the external force, it is moving. When you will remove the external force after some time, one of the force, the same force we have discussed, that is frictional force, will stop the motion of the bicycle. अब frictional force क्या करेगा? जो टायर्स है, जो कॉन्टेक्ट है टायर्स का ग्राउंड के साथ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और धीरे धीरे वो फ्रिक्शनल फोर्स उस टायर की स्पीड को या फिर साइकिल को स्लो डाउन करेगा. तभी उस साइकिल को टाइम लगेगा स्टॉप होने में. सो द फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी इविल, दैट्स व्हाई इट इज सेड. Okay, now when we talk about unbalanced forces, and if we want to find or if you want to calculate the acceleration, we know that from all these examples, whenever we take unequal force or unbalanced force, that only lead to motion. अब बैलेंस फोर्सेस की बात करो तो एक केस ऐसा भी आ सकता है कि जहां पे फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं कि मोशन तो हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं फोर्सेस, लेकिन दैट पर्टिकुलर मोशन इज अ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट वेलोसिटी मींस स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है. दैट आल्सो कैन बी द एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्सेस. फॉर एग्जांपल, यही जो बाइसिकल का एग्जांपल लिया था आपने, जब तक आप साइकिल पे पेडल लगाओगे तो जितना आप आगे फोर्स लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है. बैलेंस फोर्सेस कैंसिल ईच अदर. लेकिन इस केस में फोर्सेस तो बैलेंस हो रहे हैं लेकिन फिर भी मोशन है. लेकिन वो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म साइकिल विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो बैलेंस फोर्सेस में भी मोशन हो सकता है, अनबैलेंस फोर्सेस में भी मोशन हो सकता है. बट इफ आई वांट द एक्सेलरेटेड मोशन, की स्पीड बढ़ानी है, सॉरी वेलोसिटी बढ़ानी है या घटानी है, then I will need unbalanced forces. तो for acceleration I will need unbalanced forces. ऐसे forces लगेंगे कि जो unequal है, unbalanced है, then only it will lead to acceleration. अब याद करो, velocity अगर constant है, balance forces का एक example है, velocity constant होगी. अगर velocity constant है तो क्या acceleration मिलेगा? No. What is acceleration? Change in velocity upon time taken. Velocity change ही नहीं होगी, change in velocity क्या हो जाएगी? Constant रह रही है ना velocity. If the velocity is not changing, value of velocity is 0. Velocity 0 हो गई, acceleration भी 0 हो गया, तो acceleration मिलेगा ही नहीं.
कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. सो टू गेट एक्सेलरेशन वी विल नीड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन फोर्स इज रिमूव? जब अपन फोर्स रिमूव करेंगे, कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, whenever you will remove the force, what will happen? That is the question. To understand this question, our next topic come into picture, that is first law of motion. नाम सुना है सबने गैलीलियो का? तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू अंडरस्टैंड दिस टिपिकल कॉम्प्लेक्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या किया? एक सेटअप लिया उन्होंने. इफ यू नो व्हाट मार्बल इज, मार्बल लिया एक, और उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर वो मार्बल रख दिया, बाजू में और एक इंक्लाइंड प्लेन रखा और थोड़ा डिस्टेंस रखा बीच में. जैसे ही उसने मार्बल को छोड़ा, मार्बल विल ड्यू टू द एंगल धीरे 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 नीचे पहुंचेगा. अब यहाँ पहुंचेगा तब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई होगी कि वो अगर सेम हाइट पे है, दोनों हाइट सेम है दोनों इंक्लाइंड प्लेन की, तो दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर तक जाएगा. फिर उसने क्या किया? इन द सेकेंड केस इट डिक्रीज द एंगल, दूसरे प्लेन का एंगल थोड़ा डिक्रीज कर दिया. अब क्या होगा? यहां से आएगा मार्बल और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेगा. धीरे 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 एंगल घटाते 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 पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया प्लेन को. अब ये एंगल पे है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से मार्बल छोड़ा. अब कंडीशन ये है कि जब भी एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो गैलीलियो हैज यूज्ड अ प्लेन, अ मार्बल व्हिच इज स्मूथ, व्हिच हैज नो रफनेस, मींस फ्रिक्शनलेस ली थी उन्होंने सारी चीज. अगर फ्रिक्शनलेस ले लोगे तो मार्बल अपने आप रुक ही जाएगा ऑब्वियसली, बट देयर इज नो फ्रिक्शन, और यू कैन से स्मूथ सरफेसेस, नो रफनेस, नो इरेगुलरिटीज. सो व्हाट विल हैपन? जब भी वो मार्बल को छोड़ेगा, अब मार्बल है स्मूथ, रफनेस है नहीं, that is the ideal case, but marble is smooth. Inclined plane की surface is also smooth. If there is friction, there is very less friction or no friction. So what will happen? There is no friction, so who will stop the marble? No one. तो जितने फोर्स से आप रिलीज करो ग्रेविटी की वजह से, वो नीचे आएगा and then it will keep on moving with the constant uniform velocity or uniform motion. अब क्या पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से भी गैलीलियो को कि भाई वो तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मुझे तो क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यू वोंट गेट एन एक्सेलरेशन. अगेन टू चेंज द मोशन, टू गेट द एक्सेलरेशन, यू विल नीड unbalanced forces. Unbalanced forces are required. Then comes the statement of first law of motion, which was given by Newton. Actually all the laws of motion given by Newton, that's why it is called as Newton's laws of motion. From them the first law of motion, also called as, that you know the answer that we will discuss, statement is an object remain in state of rest or uniform motion unless compelled to change the state by applied force. कोई भी ऑब्जेक्ट है, या तो अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है, कीप इन माइंड यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा. कब तक? जब तक आप कोई अनबैलेंस फोर्स बाहर से ना लगाओ. अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तभी वो मोशन, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगा. क्या कहा हमने? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट से हिलाने के लिए अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा. कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, अब आप कहोगे सर यूनिफॉर्म मोशन में ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, बट these are the बैलेंस फोर्सेस. नेट फोर्स क्या है? जीरो. बैलेंस फोर्सेस है तो वो कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब तो इन दोनों केस में एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं रहा, रेस्ट है, एक्सेलरेशन जीरो. यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो. अब एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? अनबैलेंस फोर्स, तभी वो अपना स्टेट चेंज करेगा. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? बेसिकली कि भाई ये दीवार है जैसे, इफ आई विल ट्राई टू पुश द वॉल, विल इट मूव? नो. इफ आई विल ट्राई टू पुश द फुटबॉल, विल इट मूव? यस. व्हाई? There comes a property of a material to resist the change.
बॉल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसको इतना छोटा सा फोर्स दूंगा वो मूव कर जाएगा। बॉल की क्या प्रॉपर्टी है कि उसको बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा तब वो मूव करेगा। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट। रेजिस्ट मींस टू अपोज। जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब उसका इनर्शिया उतना सफिशिएंट ना हो कि उसे रोक पाए। इनर्शिया मतलब एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जो जब भी आप फोर्स लगाओगे उसे फोर्स को इस तरह से एक्ट करेगा कि वो उसे चेंज ना कर पाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इनर्शिया इज। You know that if you are driving or while driving, whenever we apply brakes, okay, why we apply brakes? There might be some obstacle in the way. So if you are driving your car and suddenly you apply brakes, they say that wear seat belts. Why? ब्रेक तो कभी भी लग सकती है। अब जैसे ही कार चल रही है, कुछ वेलोसिटी है, जैसे ही कार चल रही है तो कार के साथ साथ आपका बॉडी भी उसके साथ कांटेक्ट में है, तो बॉडी भी क्या है, मोशन में। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे आपका बॉडी मोशन में है और अचानक ब्रेक अप्लाई की तो फोर्स लगता है आगे की साइड, क्योंकि कार अपर बॉडी तो मोशन में था, लोअर बॉडी वाज इन कांटेक्ट विद द कार। अपर बॉडी इतना कांटेक्ट में नहीं होगा, रिलैक्स होगा, उसे पता नहीं चलेगा जैसे ही ब्रेक लगी तो वो मोशन में रहना चाहेगा, तो आगे बेंड हो सकता है, इट मे लीड टू सम डैमेज। दैट्स व्हाई it is recommended to wear seat belts inertia की वजह से। that is called as inertia of motion, कि आप मोशन में हो तो मोशन में रहना चाह रहे हो, तभी वो अचानक ब्रेक लगने पे you have to wear the seat belts। standing in a moving bus, we all have traveled through a bus। अच्छा, inertia को सबसे अच्छे तरीके से समझना हो then you will visit a bus or whatever it is। जैसे ही आप बस में बैठे हो, चलो बस भी मोशन में है या फिर बस अभी चलो रेस्ट पे है, चालू होने वाली है, चालू की ड्राइवर ने बस, अब अचानक से उसने एक्सीलरेटर दे दिया और आप खड़े हो या फिर कुछ मोबाइल में देख रहे हो, व्हाट विल हैपन? अचानक से सडनली इफ ड्राइवर विल स्टार्ट द बस, व्हाट विल हैपन? यू विल गेट अ फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में, तो लोअर बॉडी आगे चली जाएगी और ऊपर बॉडी क्या है, रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, तो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे। दैट्स व्हाई स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। अब वैसे ही देखा होगा आपने कहीं पे भी कि आप अचानक से शार्प टर्न लोगे, इफ यू आर मूविंग इन अ कार एंड इफ यू टेक अ शार्प टर्न, जब भी शार्प टर्न इस तरफ लोगे तो इस तरफ आपको एक फोर्स लगेगा। दैट फोर्स इज आल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया, आपका बॉडी उस तरफ रहना चाह रहा है। That's why example of inertia. These are the examples of laws of inertia in practical application, you can say, in our day-to-day life. What we understood from inertia, that or what is the relationship between mass and inertia? बॉल की बात की थी अपन ने और एक फुटबॉल की बात की थी, क्या डिफरेंस है दोनों में? मास का। तो जिसका मास ज्यादा होगा बेसिकली उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। तो हाउ यू कैन से or what you can say about the inertia कि heavier object offers larger inertia। तो जब आप मेजर करते हो इनर्शिया को तो you will think about the mass, कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, जिसका ज्यादा मास है वो ज्यादा अपोज करेगा, that's why more inertia। terms and conditions applied here। I am not talking about the frictionless surfaces। okay, coming or jump to the next topic, that is second law of motion। In the first law we discussed about रेस्ट है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर ही रहेगा। मोशन में सॉरी यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए। नाउ वी वांट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हिच सैटिस्फाई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो पहले सेकंड लॉ क्या है ये देख लेंगे। तो ये समझने के लिए लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल। चलो, एक तरफ आपका टेनिस का बॉल है, टेबल टेनिस का बॉल बेसिकली, यू माइट हैव सीन दैट टेबल टेनिस बॉल, और एक तरफ आपका जो रेड कलर का अपना टेस्ट मैच खेली जाती है वो वाला बॉल है, सीजन बॉल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दोनों अगर अचानक से थ्रो करूं आपके ऊपर तो टेनिस बॉल है दैट वोंट हर्ट यू मच, बट
the cricket ball will give you the injury. ना पता है कैच कर लोगे, लेकिन अगर ध्यान ना हो तो इट में गिव यू द इंजरी. क्या डिफरेंस है दोनों में? मास. जिसका मास ज्यादा उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एक ट्रक है, भारी भरकम ट्रक, फुल्ली लोडेड, खाली हो तो भी ट्रक तो ट्रक ही है, अभी रेस्ट पर है. ठीक है, रेस्ट पर मतलब वेलोसिटी क्या है? 0. अब सडनली चल रहा है वो, कोई भी वेलोसिटी हो, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो जब रेस्ट पे था तो उसका कुछ इम्पैक्ट था नहीं. लेकिन जैसे वो मूव करेगा तो फिर आप भी ध्यान रखोगे कि ट्रक से दूर रहे. जैसे आप बस से दूर रहते हो वैसे ट्रक से भी दूर रहने का सोचोगे. भाई थोड़े भी वेलोसिटी से यार उसका मास कितना ज्यादा है, इट विल गिव यू द परमानेंट इंजरी. दैट्स व्हाई वेलोसिटी जिसकी ज्यादा होगी इट विल हैव मोर इम्पैक्ट. तो दो क्वांटिटी के बारे में बात की अपन ने. मास ज्यादा हो तो उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, वेलोसिटी ज्यादा हो तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है. नाउ देयर कम्स अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कॉल्ड एज, कहा गया, P, मोमेंटम. P stands for momentum. क्या है momentum? It is nothing but the product or multiplication of the mass and velocity of an object. जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, what you will get quantity called as momentum. अब मोमेंटम है और उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है. जब कैलकुलेट करोगे you will get the direction and magnitude both. तो मैग्नीट्यूड के लिए मास का मैग्नीट्यूड रख दो, जो भी वेलोसिटी हो रख दो, you will get the magnitude means the value. Remember the last lecture. तो what will be the direction? मैग्नीट्यूड तो चलो कैलकुलेट कर लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों, एक 5 है एक 10 है, 10 5 50. What is the direction then? What is the direction of momentum? तो अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल बस इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम. जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? मोमेंटम की. Okay, that's how you can find the direction of momentum. Now let's take another example. For example, एक कार है, ठीक है, बैटरी डेड हो गई है, बहुत टाइम से चला ही नहीं है आपने कार, बैटरी इज डेड, कोई मैकेनिक भी नहीं है आजू बाजू. What you will do? पता हो आपको, जंप स्टार्ट तो हो सकता है, लेकिन पुश करके भी आप अगर बैटरी डेड हो गई है तो उसे टेम्पररी स्टार्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो. तो what we will do? सेकेंड गियर में रख के, whosoever the driver is, he is on the driver's seat and there are some other people who are pushing the car. अब ध्यान से अगर आपने देखा हो या फिर धक्का दिया हो कार को, तो कभी कभी क्या होगा कि आप जब स्टार्टिंग में पुश करना स्टार्ट करते हो ना, तब बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. लेकिन थोड़ा ही मूव करना स्टार्ट कर दे कार, फिर वो आपको इजीली आप फोर्स लगाओगे तो भी चल जाएगी. तो धीरे धीरे, मतलब आपने क्या मतलब इसमें ऑब्जर्व किया इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है. इन दैट केस पुशिंग द कार, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब याद करो, इधर क्या था? मोमेंटम. मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. कमिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, states that the change in momentum, नीचे टाइम है, अब याद करो जहां पे भी टाइम हो यू कैन यूज द वर्ड रेट. द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम एंड डेल्टा टी इज द टाइम टेकन टोटल. तो जितना मोमेंटम चेंज होगा एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. That is the statement of second law of motion. कि कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. मतलब समझो इसका, कि जैसे ही आप जो फोर्स लगा रहे हो, धक्का दे रहे थे ना कार को, वो धक्का दो चीजों पे डिपेंड करेगा. जितना टाइम बढ़ेगा उतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और जितना मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा. तो ये डायरेक्टली, और यू कैन से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस होगा ना फोर्स. लेट्स
try to find the mathematical interpretation of second law of motion. For that we will take different symbols. U, here U stands for, if you remember, it is initial velocity. V is your final velocity. T is the time taken, total time taken you can say. F is the applied unbalanced force, and mu will become your initial momentum, और P2 मतलब final momentum, mv. okay, mu is P1 और mv will be P2. अपन ने इनिशियल मोमेंटम को P1 नाम दिया है, फाइनल मोमेंटम को P2. पहले P1 था, अब P2 हो गया. चेंज कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल. तो P2 माइनस P1 will be the change in momentum divided by the delta t is the t itself, the time. The force is directly proportional to P2 minus P1. अभी वही लिखा अपन ने, P2 minus P1 upon time. अब P2 की वैल्यू क्या है? mv. P1 की वैल्यू mu. वैल्यू पुट करो, m कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा? v minus u by t. अब यहाँ पे लास्ट चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन थी वो काम आएगी. If you remember, then v minus u by t is nothing but change in velocity by time, that is acceleration. तो v minus u by t की जगह मैं acceleration लिख सकता हूँ, that is k, okay, m into a. अब ये k कहाँ से आया? If you remember, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर, क्यों करना है रिमूव? तो रिमूव करने की रीजन क्या है कि भाई कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन सोल्व करना है तो इक्वालिटी की साइन हो तभी सोल्व कर पाएंगे. नाउ टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट. इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम दिया है अपन ने k, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. v minus u by t की जगह a आ गया, तो f is equals to k m a. नाउ अगर फोर्स भी 1 है, मास भी 1 है और एक्सेलरेशन भी 1 है. मास 1 kg है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और फोर्स 1 यूनिट है, तो k की वैल्यू भी क्या होगी? 1. तो अगर k की वैल्यू 1 रख दूं मैं इस इक्वेशन में, तो वी विल गेट f is equals to m a. याद है ये सबको इक्वेशन? या अब इसका यूनिट क्या होगा? अब फोर्स is discovered by Newton, that's why its unit is also Newton, capital N. नाम लिखोगे तो स्मॉल में आएगा पूरा, न्यूटन. Now that is called as SI unit of force, that is Newton. Now let's take some quick examples. चलो, आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेलते हो आप, तो whenever a wicket keeper takes a catch, तो जब वो कैच लेगा कैसे लेगा? बॉल को कैच ऐसे ही डायरेक्ट निकल लेगा, वो बॉल को कैच करके से पीछे ले जाएगा. वाई कर क्या रहा है वो बेसिकली? अब वो बॉल लग भी सकता है हाथ में, तो जैसे ही वो बॉल को पीछे ले जाएगा तो बॉल की कुछ वेलोसिटी है, और जब भी हाथ को स्ट्राइक कर रहा है तब वो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 जीरो करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो करेगा मतलब टाइम बढ़ रहा है जीरो होने का. पहले कुछ वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी जीरो हो रही है. वेलोसिटी v से जीरो होने में कुछ टाइम लग रहा है, टाइम बढ़ रहा है. अगर डायरेक्ट कैच कर लेगा तो v वेलोसिटी से आ रहा है, कैच किया तो जीरो. v से जीरो कितने टाइम में हो गया? बहुत कम टाइम में, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. बट जब हाथ पीछे ले जाएगा, टाइम बढ़ा रहे हो, तो इफ यू विल इंक्रीज द टाइम, सी टाइम इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम. तो जैसे ही टाइम बढ़ेगा फोर्स घटेगा, तो बॉल उतना आपको लगेगा नहीं हाथ में. दैट्स व्हाई दे टेक द बॉल लाइक दैट. अब आपने और एक एग्जांपल लेते हैं. चलो, हाई जंप देखा होगा सबने ओलंपिक्स, इफ यू सी और वट एवर द स्पोर्ट. तो हाई जंप में आप देखोगे कि इतनी हाइट तक ऊपर तक जाता है बंदा, फिर ऊपर से फ्री फॉल होता है उसका. अब फ्री फॉल हो रहा है, तब नीचे आप क्या रखोगे? कुछ गद्दा, कुशन. व्हाई कुशन? what is the function of cushion there? What is the property of cushion that is used? The property is second law of motion. Why? वही चीज कि जब भी वो पर्सन ऊपर से नीचे आ रहा है, जो स्पोर्ट्स एथलीट आ रहा है, अब डायरेक्ट स्ट्राइक कर गया वो कोई कंक्रीट की फ्लोर है, तो क्या होगा? मोमेंटम सीधा जीरो, वेलोसिटी जीरो, कुछ वेलोसिटी हो रही है, टकराएगा, कोलिजन होगा, सीधा जीरो हो जाएगा. मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, टाइम बहुत कम लगेगा. तो नाउ यू हैव टू इंक्रीज द टाइम. जैसे ही टाइम बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा. तो आप क्या कर रहे हो? बेसिकली वो कुशन, यहाँ पे जब पर्सन स्ट्राइक करेगा तो कुशन उसे टाइम बढ़ाने का टाइम देगा.
टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी जीरो होने में, as the time increases force will be decreased. Or you can say, if you will increase the time to change the motion, the force or the applied force will be have less impact, or it will be decreased. Coming to the last chapter, that is last topic of the chapter, that is third law of motion, or you can say third law of Newton. What is the law? Now, to understand this law, if you have seen, we have taken so many examples today. Let's take an example of a football match. Two legendary footballers are in the opposite team. They are running behind a ball. अब the situation is one of the player has a ball. अब वो जैसे ही आगे जा रहा है, या फिर एक बॉल है और दोनों प्लेयर एक साथ उस बॉल को लेने जा रहे हैं. Now, if one player tries to strike a goal or tries to hit a ball, और वो बॉल थोड़ा आगे चला गया, हिट नहीं हुआ, लेकिन दोनों प्लेयर इतना स्पीड में दौड़ के आ रहे थे, दोनों के पास अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम था, दोनों टकरा गए. अब इसमें जो ज्यादा स्पीड से आ रहा था वो दूसरे के साथ टकराया, उसने उसको तो इंजरी दी, लेकिन उस खुद को भी इंजरी आ गई. उसको तो वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी से हो रहा था उसने पुश किया, लेकिन सामने उसको भी इंजरी आ गई. वाई? इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, उसको ही आनी चाहिए थी, सामने वाले को, इसको भी इंजरी है. द रीजन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जब भी एक्शन होगा उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, इक्वल आएगा. What is this action and reaction? It is nothing but the forces. कि जितना आप फोर्स लगाओगे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगेगा, जितने फोर्स से आप टकराओगे सामने उतना ही फोर्स आपको लगेगा. एक्शन एंड रिएक्शन आर नथिंग बट द फोर्सेस. दूसरी चीज क्या है थर्ड लॉ के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. पहले ऑब्जेक्ट ने और पहले प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को पुश किया, एक्शन लगा, और दूसरे प्लेयर ने इस प्लेयर को वापस पुश किया, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. इट पुशेस बैक, दैट्स व्हाई that is reaction. And these two forces, action and reaction, act on two different bodies. इसका फोर्स उसको लगा, उसका फोर्स, दोनों का फोर्स क्या लग रहा है अलग अलग बॉडी पे. that's why action and reaction are act on two different bodies. Third point, that is as both the forces are equal and in opposite direction. equal force है और opposite direction में. the most important is these action and reaction forces which are equal in magnitude and opposite in direction are acting simultaneously. लगेगा आपको कि भाई एक्शन पहले होगा, रिएक्शन बाद में होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट. जैसे ही एक्शन होगा उसी सेकंड, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्शन और रिएक्शन साथ में ही लगता है. एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एक्ट साइमल्टेनियसली. एक साथ लगेगा दोनों फोर्स. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. It has so many applications. If you are walking, you know that while walking, because of friction you are walking. In controlled way you are walking because of friction. Friction आपको opposite direction में लग रहा है, friction नहीं होता तो slip हो जाते हैं आप. If you are writing, because of friction. Now, if you are walking, तो आप क्या कर रहे हो? पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और ग्राउंड आपको जैसे ही एक्शन लगाओगे उसका रिएक्शन क्या आएगा, किस पे आएगा? अनदर बॉडी. दैट इज द फुट ऑफ अ पर्सन. जितना उसने फोर्स पीछे लगाया पर्सन ने, उतना ही फोर्स आगे लगेगा. तो आप जब चल रहे हो यहां से वहां, at that time also you are using the third law of motion, that is every action there is an equal and opposite reaction. अब बहुत interesting example, if you are using a gun, you might have observed that जैसे ही गन में से जो बुलेट है वो निकलेगी तो गन थोड़ी पीछे की डायरेक्शन में जाती है, और तभी कहा जाता है कि ये आपका जो भी है मशीन गन या कुछ भी यूज कर रहे हो आप, whenever you are firing, तो ये आपको क्या रखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो you will get an injury, क्योंकि रिकॉइल आएगा. दिस इज कॉल्ड एज रिकॉइल ऑफ अ गन. व्हाट इज दैट रिकॉइल? अब देखो बुलेट का मास क्या है, बहुत कम. गन के कंपैरिजन में बुलेट का मास कम है, गन का मास ज्यादा है. अब जैसे ही बुलेट फायर होगी, कम मास है, ज्यादा वेलोसिटी से फायर होगी, जब भी फोर्स लगेगा तो बुलेट का जो मास है वो कम है, ज्यादा वेलोसिटी से मूव की. जैसे ही बुलेट आगे जाएगी, अब किसी फोर्स की वजह से आगे गई होगी,
तो जिस फोर्स की वजह से वो आगे जाएगी, एक फोर्स उस फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, एक्शन तो रिएक्शन भी लगेगा, तो गन भी पीछे जाएगी। लेकिन जितना बुलेट ट्रैवल करेगी उतना थोड़ी गन ट्रैवल करती है, थोड़ा ही ट्रैवल करेगी, लेकिन वो भी फोर्स क्या होगा, दैट फोर्स विल आल्सो द एनॉर्मस फोर्स। तभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉइल ऑफ गन, सेलर ऑफ अ बोट। या फिर आपने भी कभी बोट चलाई हो, तो हाउ यू राइड दैट बोट लाइक दैट। और जब भी आपने चलो बोट में बैठ लिया, एंजॉय कर लिया वेकेशन, अब आप जब भी बोट से बाहर पैर रखते हो, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट जब भी आप बाहर पैर रखोगे तो आप चाहो या ना चाहो, लेकिन एक बोट को पीछे से फोर्स लगता है, तभी वो बोट को पकड़ के रखते हैं, तो बोट पीछे चली जाती है। दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तभी वो मूव करेगा, तभी आप आगे जाओगे। पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा के आप आगे जा रहे हो, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। I hope the chapter is clear to you all. Thank you for watching the video. Goodbye. Physics works.